everyone. Welcome you all to this amazing segment world. I am Sani Shafi, student of class 8. Will be talking to some of the reputed and highly trained teachers in our region. We will talking about their life, achievements, failure, and most important, what it means to them to be a teacher. First of all, welcome you all to this special event. Today decision study from the right side. Today I am very happy to have here Abdul Rashid Qureshi Saab, retired master, graduated from SP College Srinagar in 1972. Qualification BA, BH, date of birth 1st of October 1946, serving as teacher in BHS Gabra, BHS Kalarus, BHS Tandar, BHS Thamkot, BHSS Kandi. Retired on 30th of September 2004. So, next is our Khoja Abdul Qayyum Sahib. Give a big round of applause for him. Khoja Abdul Qayyum Sahib was born on 5th of August, appointed as a Patwari in 1988. First Naib Tahsildar in 1988 in Kanna and transferred to Shopar in 1993. Worked in DC office Kupwara from 1990 to 2005. Retired in 2010 as a Naib Tahsildar. So next is our Mr. Nazir Ahmed Chak Saab. Mr. Nazir Saab was born on 1952 at Lunta. He has completed his degree from GDC Baramulla. Mr. Nazir Saab was appointed as a teacher in the year 1975, soon after completion of his B.Ed degree during service period. Mr. Nazir Saab had taught Hindi and Arabic to the middle classes and Arabic to higher classes also. After rendering service of about 35 years in education department, Mr. Nazir Saab retired in 2010. Name Ghulam Haider Mir, son of Abdul Aziz Mir Aro Dildar Karna. Qualification: Basic primary classes from Primary School Dildar. Matric from the then Single High School of Kanna, Bikandi Kanna in 1978. Graduation from GDC Baramulla in 1983. MA Economics from Kashmir University in 1985. Appointment: Appointed as a teacher in 1987, promoted as a master in 2000 and lecturer in 2010. Retired as a senior lecturer in 2019 August. Writing, singing and acting, Pahari writer as poet Afsana Nigar and Tahqiq Nigar. Approved Pahari singer of Radio Kashmir and Doordarshan Srinagar. Tehsil President All J&K Pahari Society Karna. General Secretary Pahari Cultural and Welfare Forum Tehsil Karna and Cultural Club Karna. Publication: Prahas Pahari Tehqiqi book published in 2010 and awarded by Cultural Academy in 2011. Reads: Poetry book published in 2015. Pukhi short story book in 2016. Karsani Tehqiqi Maqalis in 2018. Pahari Sakafit Pahari book in 2020. During services, teacher from block president Tangdar from 2010 till retirement. Employees Joint Action Committee Tehsil President Tehsil Karna from 2012 till retirement. So next is our Abdul Rashid Sahib. Give a big round of applause for him. मोहतरम अब्दुल रशीद साहिब 1947 में पैदा हुए. मोहतरम रशीद साहिब 1967 में बहसीत टीचर भर्ती हुए. फिर 1993 में बहसीत मास्टर प्रमोशन हो गई. मोहतरम रशीद साहिब एक शायर भी हैं. इनका तहल्लुस गमगीन है. इनकी जिंदगी के बारे में जितना बोला जाए कम है. मोहतरम अब्दुल रशीद साहिब ने बहुत सारे ड्रामे भी लिखे हैं. तकरीबन 150 छोटे बड़े ड्रामे इन्होंने लिखे हैं. इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं. इनमें से कार कार की कहानी बहुत मकबूल पहाड़ी जुबान की किताब है.
जनाब अब्दुल रशीद साहिब ने जिंदगी में बहसीत उस्ताद होने के साथ साथ ड्रामा आर्टिस्ट, गायकार और शायर भी रहे हैं। Mr. Abdul Rashid Qureshi Saab, I want to know from that is there and difference in your approach as a teacher in your school and that as a parent to your children. मैं आप साहिब से जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया बहसीत उस्ताद स्कूल में और बहसीत वालिद घर में कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बिलखुसूस इदारे के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। यह हमारी इज्जत अफजाई है। हमारा बायोडाटा आपने नशर कर दिया। अब बच्ची ने सवाल किया है, सवाल के मुताबिक ही जवाब दिया जाएगा। शायद और भी कोई सवाल हो। जहां तक बहसीत उस्ताद मेरा ताल्लुक है, था नहीं बल्कि है, अब भी है, क्योंकि उस्ताद जो है ये कभी रिटायर नहीं हुआ करता। उस्ताद ही एक ऐसा रैंक है जो मरते दम तक आदमी के साथ रहता है। इंसान की तबीयतें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाई है। एक ही किस्म की खसलत खो नहीं बनाई है। मुख्तलिफ तबीयतों के लोग पैदा किए हैं। अब उसी हिसाब से लोग चलते भी, उसी हिसाब से प्लानिंग भी करते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक रहा है, मुझे जिंदगी में जितनी खुशी क्लासरूम के अंदर मुयस्सर आती थी, उतनी मुझे बाहर कभी मुयस्सर नहीं आती। क्योंकि ये एक ऐसी कौम है, ये ऐसे फूल हैं, ये छोटे बच्चे ऐसे फूल हैं जिनकी खुशबू से हमारा माशरा मुअत्तर होता है। और यही वो कौम है, यही वो मासूम है जो हर गुनाह से, हर फितने और फसाद से पाक हुआ करते हैं। और इनके साथ जो घड़ी गुजरेगी, जो समय बीतेगा, जो वक्त गुजरेगा, उसका मुतबादल आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि बाहर का माशरा जो है वो बालगन नजर जरूर है, बालग लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन दिमाग के अंदर बहुत सारे तामीरी प्लानों के साथ साथ तखरीबी काम भी चलते हैं। लिहाजा उससे बचने के लिए सबसे बेहतर जो जगह है वो स्कूल है, वो क्लासरूम है। तो मेरा जो तौर तरीका रहा है बच्चों के साथ, ये मेरे साथी गवाह हैं कि मैं कभी सख्ती से पेश नहीं आया करता था बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई मुकर्रिर तो है नहीं हूँ, अलबत्ता मैं इस अदारे का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस अहल समझा और दावत दी, यहाँ शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं एक बात इस अदारे के बच्चों से कहना चाहूँगा कि इस अदारे के जो प्रिंसिपल हैं, मुझे याद है कि सबसे पहले जब मैंने इस अदारे के बच्चों को देखा, हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब आए थे डाक बंगलों में, तो वहाँ ये प्रिंसिपल साहब बच्चों को लेकर गए थे विद ए माइक, छोटा सा माइक था उस वक्त इनके पास। तो मैंने सोचा कि ये कोई स्कूल के हेल्पर हैं शायद। तो जब बच्चों ने डिवीजनल कमिश्नर साहब के आगे क्वेश्चन किए इंग्लिश में,
تو میں تو دھنگ رہ گیا. پہلے میں نے سوچا کہ یہ بچے کسی اپنی کوئی شاید ڈیمانڈ لے کے آئے ہیں، تو لیکن جب انہوں نے اپنا تعارف کیا تو مجھے بہت ہی خوشی ملی کہ ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں ایک ایسا ادارہ بھی چل رہا ہے جس سے بچے سیکھ کر آگے ترقی کریں گے. اور میری دعا ہے کہ یہ 1-2 سال کے اندر ہائر سیکنڈری کا درجہ اس کو ملے تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی. اور بچوں نے اپنے وہاں جو خیالات ان کے سامنے رکھے تو مجھے نہیں لگتا تھا یہ ہمارے کرنا انسٹیٹیوشن کے بچے ہیں. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں باہر وادی کے بچے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ان سے متعارف ہوا. میں اس انسٹیٹیوشن میں آتا رہا اور اس پرنسپل صاحب کی جو انتھک محنت اور کوشش کو دیکھا تو آج اس انسٹیٹیوشن کے بچے جو ہیں میرے حساب سے سب سے آگے چل رہے ہیں. لیکن اس میں اہم رول جو ہے استاد کا ہوتا ہے. جیسے عبدالرشید قریشی صاحب نے فرمایا کہ جو استاد کا درجہ ہے وہ نبیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کا یہ درجہ جو ہے بہت اونچا درجہ ہے. ہمیں سب سے پہلے بچوں کو اپنے استاد کی قدر کرنی چاہیے، تب ہی وہ بچہ آگے جا کے ترقی کرتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے مطلب اسکول میں جاتے تھے تو جب ہم 5th میں پہنچے تو سوچتے تھے چلو شکر اللہ کے اس ادارے سے چھٹکارا ملا. Thank you so much, sir. Another question for you, sir, is that which period is your favorite Patwari period or Naib Tahsildar period? مجھ سے سوال کیا گیا کہ کون سا وقت ایز اے پٹواری آپ کا قیمتی تھا یا ایز اے نائب تحصیلدار. دیکھیں میری جو ایم تھا اور جو مجھے والدین کی نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. پبلک میں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. امیروں کے لیے ہمیں ٹیلی فون پر کام لیا جاتا ہے، لیکن غریب جو لوگ انسان ہے، غریب جو ہے اس کا کوئی بھی جو ہے مددگار نہیں ہوتا ہے. تو ہماری فیلڈ میں جو ہے ایز اے پٹواری فیلڈ میں ڈیوٹی ہوتی ہے اور ایز اے گردار پٹواری کے بعد گرداور پرموٹ ہوتا ہے. گرداور بھی فیلڈ میں ہوتا ہے. جب مجھے کسی بھی حلقے میں اس کرنا کی تحصیل میں ہر حلقے میں نے ڈیوٹی دی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی بھی مجھے کسی طرح کی شکایت موصول نہیں ہے، کیونکہ میں اگست 2022 میں ریٹائر ہوا ہوں. 2-3 مہینے ہوئے ہیں لیکن مجھے آج تک ابھی کوئی شکایت نہیں موصول ہوئی. Thank you so much, sir. What was your reaction when you got appointed as a teacher? لڑکے نے کہہ دیا کہ آپ کیا ایکٹ کرتا ہے. I was not here in the beginning. How can I act? Actually, I was a teacher. I was teaching the students. I was not acting. So acting is something different. Teaching is something different. A teacher can teach the student the clear method. He cannot act them like hero. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے جس طرح میں کرتا تھا اس طرح آج کرنا مشکل ہے.
क्योंकि मेरी सजा बहुत सख्त होती थी। क्यूम साहब को पता है, रशीद साहब मेरा साथी है, इसके लिए इल्म है। अलबत्ता उस्ताद को ऐसा करना चाहिए कि तसब से काम नहीं लेना चाहिए। जो पड़ोसी उसके साथ कई उस्तादों को अगले जमाने में जिद होती थी, जब उसका बच्चा आता था तो पीटता नहीं था, उसको उठाकर गोद में रखता था। हाँ, बच्चा पढ़ने आया है, खरीदी भी लाया है, जेब से निकालता था, मिठाई उसको खिलाता था। जब छुट्टी हो जाती थी उसको छोड़ देता था, उसका बाप खुश होता था घर में, ओहो आज है ना उस्ताद साहब ने मेरे बच्चे को मिठाई खिलाई और बड़े लाड प्यार से दिन को रखा, है ना। जब आखिरकार जब इम्तिहान होता था, बच्चा बेचारा है फेल होकर फिर भी वो पास कर देता था 0 पर, है ना। करते करते लास्ट पर वो 0 हो जाता था। ऐसा तसब उस्तादों में नहीं होना चाहिए और बच्चों में भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि जरा उस्ताद ने रोक कर दिया था, ये लाठी मामूली से लगा दी क्योंकि घर पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और क्यों नहीं जाएगा, उस्ताद ने मुझे पिटाई की, बेइज्जती की, मारा डाला। अगर वो वहां रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर Students wants to ask you a question that what made your mind to start a poetry? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, ड्रीम वैली का स्टाफ, यहाँ के तलबा व तालबात, मैं सबसे पहले यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए हमारे एक्सपीरियंस को बच्चों और असातिज़ा कराम के साथ शेयर करने के लिए यहाँ हमें बुलाया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। जिस डाइस पे आपने हमें बिठाया है, यहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रशीद कुरैशी साहब बैठे हैं, जिनसे मैंने 10th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद मोहतरम नज़ीर साहब, मोहतरम रशीद लोन साहब और कुरैशी साहब के साथ मैंने, मुझे लगता है कि 15-20 साल हमने एक साथ स्कूलों में काम किया है बहसीत उस्ताद। मैं इनके सामने बोलने की जसारत नहीं कर सकता, लेकिन आपका हुक्म है, बच्चों का सवाल भी है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं बैठे हुए यहाँ देख रहा था कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है या पहली बार मैं स्कूल में आया हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब मोहतरम अल्ताफ भट्ट साहब से मेरा पहला इंटरेक्शन है, पहला तारुफ है। चंद लम्हों से मैं उनकी जानब घूर के देख रहा था, उनकी खामोशी के पीछे क्या पिन्हा है, वो कितने खामोश तबीयत और कितनी संजीदा और मतानत के साथ इस स्कूल को चला रहे हैं। लेकिन उनकी उस गहरी खामोशी के पीछे समुद्र की तोगयानी मुझे नजर आती है। और मुझे सोचते सोचते याद आया कि एक दौर में मैंने उर्दू में एक किता कहा था कि शायद वो इनके ही लिए कहा है। वो किता इस तरह से था कि सब रंग हैं मुझ में गुलिस्तान की तरह, सब रंग हैं मुझ में गुलिस्तान की तरह, खामोश हूं फिर भी कब्रिस्तान की तरह, किस बात पे कहती है दुनिया नादाए नदीम, मैं ढूंढता हूं साइल तूफान की तरह। बहरहाल, जहां तक स्कूल के नज़्म नस्क का ताल्लुक है, मेरे कुंबे और मेरे ख़ानदान के भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। उनसे तो मैं इतना ज़्यादा, मुझे लगता है कि इन दिनों इन 2-3 सालों में तालीम के सिलसिले में मैं उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाया हूँ। लेकिन यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मैं अक्सर इस स्कूल के प्रोग्राम देखता हूँ, तो मैं वाकई अल्लाह गवाह है कि मैं मुतासर हुआ हूँ इस स्कूल से। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस स्कूल को बहुत आगे ले जाए। और प्रिंसिपल साहब, हमारी तवक्कात हैं, इस इलाके की तवक्कात हैं कि इस स्कूल से हमें IAS, IPS, KS और KPS ऑफिसर चाहिए, डॉक्टर और इंजीनियर्स चाहिए। और उसके लिए मैं सिर्फ मियां मोहम्मद बख्श साहब की ज़बानी ये बात कहूँगा, जो पहाड़ी के बहुत बड़े शायर हो गुजरे हैं, जिन्होंने सैफले मालूक तहरीर की है अपनी मसनूवी। उन्होंने लिखा है एक शेर, वही शेर स्कूल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आज इस डाइस से, कि सदा बहार दें इस बागे, सदा बहार दें इस बागे, कदे खजाना आवे, ओन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे। ये हम सबकी दुआ है इस स्कूल के लिए।
जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक इस डिपार्टमेंट के साथ रहा है, मैंने पहले अर्ज की कि मेरे उस्ताद भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वैसे तो उस्ताद सारी ज़िंदगी हमारी कोशिश ये रही कि हम इन नौनिहाल बच्चों के इन बागों में ये खिलते हुए फूलों के बीच में रहे, इनकी खुशबू से हम महत्तर होते रहे। और हमारी कोशिश ये रही कि सारा समाज, ये सारा इलाका इन फूलों की खुशबू से महत्तर होता रहे। आज रिटायरमेंट के बाद हमें इस बात का सुकून भी है इंशाअल्लाह कि हमारे बहुत सारे शागिर्द बहुत अच्छे ओहदों पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इस इलाके की नज़्म व रस्म को चला रहे हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमेशा हमारा, जिस तरह मोहतरम कुरैशी साहब ने कहा कि हमने बैसीत उस्ताद सारी ज़िंदगी ये तमन्ना की कि एक डिसिप्लिन को कायम किया जाए और उस डिसिप्लिन को लेके हम चलते रहे। और उस्ताद होने के साथ साथ हमारी एक टीम थी मोहतरम कुरैशी साहब की क़यादत में, या मरहूम काजी मोहम्मद आलम साहब की क़यादत में, वो भी हमारे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, कि उस टीम ने, हम सोशल वर्कर होने के नाते हमने पहाड़ी अपनी ज़बान का काम शुरू किया। उस ज़बान के लिए हमने लिखना शुरू किया, उस ज़बान के लिए इन लोगों की क़यादत में रह के हमने गाना शुरू किया, ड्रामे दिए, लोगों को इकट्ठा किया। और नौबत यहाँ तक पहुँची कि इस ज़बान में जहाँ सिर्फ एक सैफले मालूक थी, वहाँ आज हज़ारों किताबें छपी हुई हैं। आखिरी सवाल, जैसा कि आपका तहल्लुस गमगीन है, हम सब जानना चाहते हैं कि आपका तहल्लुस गमगीन क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल अभी मैं पूछ लिया कि मुझे गमगीन क्यों कहते हैं। शायरी मेरी जो भी थी वो गमगीन नहीं रही है, तखल्लुस गमगीन रहा है, शायरी नहीं रही। और इस पर मुझे कई हाथ बार सवाल किए गए, और ये हमारे कुरैशी साहब, हैदर साहब ये पूरा जानते हैं कि अक्सर तौर पे वहां से डिमांड आती थी कि जी शायरी आपकी तो कुछ और है, मजाज आपके कुछ और है, और आपने तखल्लुस क्यों गमगीन रखा हुआ है। दरअसल बेटा वो बात नहीं है, बात ये थी कि जिस वक्त मैं शायरी करने लगा उस वक्त वाकई में गमगीन था, हालात का मारा हुआ था, क्योंकि मेरे साथ के बच्चे जो थे, मेरे क्लास के बच्चे जो थे, उनमें इख्तिलाफ पड़ गया था, सरकार ने डाल दिया था। अब मैं गमगीन था कि भाई मैं करूं क्या, इनके लिए क्या करूं, उनके लिए क्या करूं। वो तो ऑलरेडी मतलब वहां अमीरी गरीबी का सवाल नहीं था, वहां कोई किसी के पास 10 पैसे हैं, गुजर है, उसका मिलेगा। यहाँ दला मरता है, वो एक वतन की रोटी भी नहीं है लेकिन खान है, खोजा है, मीर है, लोन है, बाट है, इसको नहीं मिलेगा। तो ये गमगीन गम वाली बात थी या नहीं थी? तो उस वक्त मैंने अपना तखल्लुस जो था इसीलिए गमगीन रख दिया था कि मैं था ही गमगीन उस वक्त। फिर ये तखल्लुस रहते रहते रह गया, और खुदा करे कि मैं जिस वक्त एसटी का ऐलान हो जाएगा ना, मैं अपना तखल्लुस चेंज कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। Question for you. One of the student wants to know, you have rendered a huge time in Department of Education, nearly 35 years. How would you like to share this experience with us? Actually, I did not receive your sound. I'm hard of hearing, I don't hear what you said. So excuse me for the time, we will talk to the gentleman. आवाज नहीं आ रही साहब पढ़ते नहीं पाता है, उनके आपको साहब शेर नहीं कि आप शर्त जाओ, और क्या करना चाहता है आपको। अभी वक्त हो गया, जी भाई। हाँ, थैंक यू।